think the screen is visible now. Garbita? Yes, sir. Screen is visible now? Yes, sir. Okay. So today I am going to discuss the Miller indices. What we discussed on the last turn, that is on the last lecture, that was the crystallographic direction, although that is very close to the Miller indices. Only the difference is that there was a main focus on a particular line, particular direction, but here we will focus on the plane, and we will see that how the plane have the intercept along all the axes, and accordingly how we can express it in the numerical form to estimate that what plane is there and what intercept is there and how plane is cutting to the crystal. So all these things we will see here. So first we should see that what are the Miller indices, what is the definition, and what we wish to do with the numerical or the numerics in a particular bracket, what they represent actually. Miller indices are the symbolic vector representation for the orientation of atomic plane in a crystal lattice. पहली बात तो ये हुई कि मिलर इंडिसेस एक सिंबॉलिक वेक्टर हैं। किसका वेक्टर? जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी क्रिस्टल में कोई एटॉमिक प्लेन का क्या ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब कि अगर उनका कोई इंक्लिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेंगे। जैसे आप कोई चाकू ले लीजिए तो चाकू एक प्लेन की तरह है, और किसी 3 डायमेंशनल क्यूब को कट करिए तो जहां वो कट करेगा वो एक पर्टिकुलर प्लेन बनाएगा। आप ऐसे देखेंगे तो एक्चुअली हमें ये अंदाजा लगाना है कि व्हाट इज द orientation of that plane in terms of the symbolic vector representation. That will give the idea about the Miller indices and how they are defined actually, and are defined as a reciprocal of the fractional intercepts which the plane makes with the crystallographic axis. पहला क्या है कि ये बात बताता है कि जो इंटरसेप्ट हैं वो इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लिया जा रहा है, और वो रेसिप्रोकल ही बता रहा है कि प्लेन किस तरह से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। although some more things are there कि it is always in terms of the lowest integer, it will be not in terms of a fraction only. So we will see that what are the main points how to determine that. To determine the Miller indices of a plane, take the following step. कौन कौन सा स्टेप देना है? ये जस्ट एज ए फ्लो चार्ट है कि क्या क्या करना है आपको। नंबर 1, चूज अ सिस्टम ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रेफरेबली along the crystallographic axis. पहला काम क्या करना है हमें? एक 3 डायमेंशनल या 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करना है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा करना है कि ये जो क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसी के अलांग हो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट इज नॉट फिक्स, दैट इज according to our choice we can place at any point. Why? Because all the points of the lattice in a crystal are identical, because all the things surrounding to that will be exactly same. That's why any point can be considered as a origin, and according to that we can estimate the intercepts by the plane. दूसरा का स्टेप क्या होगा? Determine the intercepts of the plane along each of 3 crystallographic directions, usually along the coordinate axis x, y, z. पहला काम क्या हुआ? पहला हुआ कि हम एक 3 डायमेंशनल एक्सिस तीनों कोऑर्डिनेट्स में प्रेफर करें। दूसरा पॉइंट ये है कि हम ये डिटरमाइन करें कि इन तीनों एक्सिस के अलोंग वो प्लेन का क्या इंटरसेप्ट है उस क्रिस्टल में एक्चुअली। तो एक्सप्रेस दीज इंटरसेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सियल यूनिट। जैसे एक्सियल यूनिट माने यूजुअली ए बी सी,
को एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की यूनिट मानते हैं। एक यूनिट कितनी है? ए है। 2 यूनिट कितनी होगी? 2a। 3 यूनिट कितनी होगी? 3a। अगर हम इनका हाफ यूनिट ले तो a/2 इनकी हाफ यूनिट होगी। ऐसे ही बी और सी के डायरेक्शन में भी होगा। तो पहला क्या, नेक्स्ट काम क्या है कि हमें इन इंटरसेप्ट्स को इन टर्म्स ऑफ unit of axis what we have considered that we have to express. Next point क्या है? Take the reciprocal of the intercept. Intercepts का हमें reciprocal लेना है, उनको हमें 1 by thing लिखना है whatever the cut is there. अगर 1 कट है तो 1/1 हो जाएगा, अगर 2 कट है 2 यूनिट है तो 1/2 हो जाएगा, अगर हाफ है तो 1/1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक्सप्रेस कर लेना है। After that, taking the LCM of the numerical values of above intercepts, reduce them to the smallest 3 integer which have the same ratio. ये बात करनी है हमें कि हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर में उन तीनों को लिखना है, कोई फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। एंड इनक्लोज द रिजल्ट ऑब्टेन इन स्टेप 5, जो नेक्स्ट एलसीएम वाले स्टेप में हमें रिजल्ट मिला है, उसको हमें पैरेंथेसिस में लिखना है, जो एच के एल से रिप्रेजेंट होते हैं। एंड these are known as the Miller indices of a crystal plane. Let us have some examples for our sake of convenience and more clarity. तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे इसमें तो पहला एग्जाम्पल यह है। तो इसमें कोई बताए भाई कि एक्स एक्सिस पर कितना कट है? एक्स एक्सिस पर कितना कट है? इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस बोले सर 1 यूनिट का 1 यूनिट है। वाई एक्सिस पर 0 0 एक्स जेड एक्सिस पर सर 1 है, जेड एक्सिस पर 1 है, 0 सर 0 है। जो लोग 0 बता रहे हैं इनसे कितने लोग संतुष्ट हैं? कोई और बताए? जीरो कट कहाँ है इस पे? कहीं कट कर रहा है क्या इस एक्सिस को? वाई एक्सिस पर ये प्लेन कहीं कट कर रहा है? नो सर। तो आपने कैसे कह दिया कि 0 कट है? 0 कट तो तब होता जब आपका प्लेन ओरिजिन से होके गुजरता, तो वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं होता। तो एक्स वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है ये? अरे बताओ, बोलोगे? इतना इसके पहले डिस्कस किए थे डायरेक्शन वाले में। वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? ऐसे ही सारी प्रॉब्लम्स दे देंगे सब लोग, पता लगा कि 10 में से 5 नंबर भी नहीं पाओगे। वाई एक्सिस को ये कहीं नहीं कट कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है, इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। क्यों? उसके पैरेलल है। यही जेड एक्सिस पे भी है, यानी इंटरसेप्ट along x axis is 1 unit, along y axis that is infinity, along z axis it is infinity, because this plane is parallel to the y axis as well as z axis. How we will estimate? You can see here. Axis is given here, intercept points are given here. On x axis there is 1 unit, on y axis there is infinite, and on z axis there is infinite. Next step is reciprocal of these, then 1 by 1, 1 by infinity, 1 by infinity, and 1 by 1 is equal to 1, 1 by infinity is equal to 0, and 1 by infinity is equal to 0. अब इसमें हमें इसे रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट इंटीजर के रूप में है। इसलिए 1 0 0 को हम पैरेंथेसिस में रखेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, and that will be known as the Miller indices. Let us have some more questions, some more numericals, so that you may have the clarity for the same. And similarly, what we did in case of
crystallographic direction, the same situation is prevailing here. Only the difference is that in that case we were taking a direction, that is a particular direction of direction for which we are estimating that what will be the cut point, and here we are taking the plane, यानी वो 2 dimension और ये यहाँ 3 dimensional उस लाइन का, although वो जब कोई भी लाइन चलेगी किसी भी क्रिस्टल में तो वो तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में चल रही है, इसीलिए उसके टिप के कोऑर्डिनेट को हम हमेशा 3 डायमेंशन में ही एक्सप्रेस करते थे। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि जो ये प्लेन कट कर रहा है एक्सिस को, ये ऑटोमेटिकली सभी एक्सिस पर कुछ ना कुछ कटिंग इसकी होगी, कहीं पैरेलल होगा, कहीं कट करेगा या कहीं हाफ कट करेगा, कहीं 1/3 कट करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। लेट अस हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। तो लेट मी नो एनीबॉडी कि व्हाट इज द कट, व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस? 1 obviously. Along y axis? 1 again. And along z axis? Infinite. Infinite, because nowhere it is intersecting. Nowhere it is intersecting. तो आप दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग टू द जेड प्लेन। अगर कोई भी चीज किसी को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये प्लेन क्या है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम अब जब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि व्हाट द एक्सियल इंटरसेप्ट इज देयर, देन in x direction 1 unit is there, in y direction 1 unit is there, along z axis infinity is there. That's why the reciprocal of each we are taking, and we are getting 1 by 1, 1 by 1, 1 by infinity, 1 1 0. These are the Miller indices. Okay, so this is the other example number 2. Let us have some more examples also, so that you may have the more clarity for this. Now here this plane, what the intercept of this plane along z axis? Along z axis 1, along y axis again 1, along z axis again 1. What will be 1. So what will be the Miller indices? 1 1 1 1 1 1. क्यों? इनका रेसिप्रोकल भी लेंगे तब भी 1 ही आएगा। एंड फाइनली ऐसे प्लेन का जो इंटरसेप्ट होता है वो 1 1 1 होगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस 1 इंटरसेप्ट, ऑन वाई एक्सिस 1 इंटरसेप्ट, ऑन जेड एक्सिस 1 intercept, and finally reciprocal will remain as such, and the smallest ratio in terms of the integer, that is 1 1 1, and Miller indices will be 1 1 1. Now let us have the intercept of this particular plane. So if you are taking the origin as the initial point here, which is appearing at the midpoint, midsection of this figure, then what is the intercept along z axis? Let me know here. What is the intercept? Infinity. Infinite. Okay. And what is intercept along y axis? 1. 1. And what is intercept along x axis? Half. What will be the Miller indices? 1 to 0. 1 to 0 जो मैंने वही बोल दो, कैसे होगा? 1 to 0. 1 to 0 कोई बता रहा है? हाँ, 2 सही बोल रहे हो। 1 to 0. 2 0 1 2 1 0. 2 1 0. 1 to 0 sir. 1 2 0. 1 to 1 0. 2 0. जरा ध्यान रखिए कि सारे स्टेप्स को करके तब देखिए, तब जो है गलती नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे किया गया है।
और आप क्या बता रहे हैं क्या सही है। सर On देखिए x सर, axis 210 हाँ? 210 210 कैसे कि हुआ भाई ये देखिए x एक्सिस पर हाफ कट है, तो इसको करके इसीलिए कह रहा हूं, करके आप देखिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है, बट ओनली हैव टू फॉलो द स्टेप्स। तो अगर इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे हाफ का, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 ऊपर चला जाएगा, और अगर 2 ऊपर चला गया तो आपको इसको रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये 2 हो गया, और दूसरा 1 बाई 1 1 है ही है, और 2 1 0। तो दिस इज द मिलर इंडिसेस 2 1 0। Let's have the example number 5। अब आप इसमें बताइए भाई, इसमें कितने प्लेन दिखाई दे रहे हैं? इसमें कितने प्लेन दिखाई दे रहे हैं? बताओ भाई, अब कोई बोलेगा ही नहीं। अरे 2 प्लेन दिखाई दे रहे हैं जी, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला प्लेन है। तो हम आइए ऊपर वाले प्लेन का या नीचे वाले प्लेन का किसी एक का मिलर इंडिसेस निकालेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा वाला प्लेन होगा उसका मिलर इंडिसेस आपको स्वयं निकालना है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं पहले जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी तो मैं इस प्रॉब्लम को दे भी चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आइए देखते हैं क्या है। ABC हम एक्सियल यूनिट मानते हैं, इसमें माना भी गया है। तो आप देखिए, अगर हम नीचे वाले प्लेन को देखें जो डार्क प्लेन टाइप का है, तो डार्क प्लेन में ये एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है? बोलो भाई। 1 यूनिट पर। और जेड एक्सिस को हाफ पे हाफ पे कट कर रहा है। वाई को पैरेलल है इनफाइनाइट से। पैरेलल है, देखो सीधे सीधे लाइन निकल गई, उसको कहीं वो कट नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1, वाई एक्सिस पर इन्फिनिटी, और जेड एक्सिस पर हाफ। तो ए वाला कितना हो जाएगा? 1 बाई 1, और बी वाला 1 बाई इन्फिनिटी, और सी वाला जैसा अभी किसी बच्चे ने बताया था कि ऑब्वियस सी बात है कि जब इसको हम इनवर्स लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/2 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 हो जाएगा। तो उसे रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो मिलर इंडिसेस आएगा 102 आएगा। अच्छा, जरा लगे हाथ हमको बता दीजिए ऊपर वाले प्लेन का क्या मिलर इंडिसेस होगा? ऊपर वाले प्लेन का जो डार्क डार्क प्लेन में दिख रहा है का, उसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है? 2 है। और वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। जेड एक्सिस पे कितना है? 1 है। तो मैं कॉपी लिया हूँ, लिखते भी जा रहा हूँ इस पे कि आपने बताया कि ए के डायरेक्शन में 2 यूनिट है, और बी के डायरेक्शन में इन्फिनिटी है, और सी की डायरेक्शन में 1 यूनिट है। यही ना बात बताई। अब इसका क्या करें फिर? अब इसको क्या करें? इसका रेसिप्रोकल लिया जाए। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 हो गया एक्स एक्सिस पर, और बी वाले पे 1 इन्फिनिटी हो गया, और सी वाले पे कितना हो गया? 1/1 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू हो गई हाफ, 0 और 1। अब क्या करें इसको? अब इसको क्या करें? इसे हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर में करना है, तो इसे हमें पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 0 और 2, 102 इसका मिलर इंडिसेस होगा। अच्छा, 102 आया, देखो इसका मिलर इंडिसेस कितना आया अभी जो हमने निकाला? 102, और इसके पहले कितना आया? 102।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पैरेलल प्लेन दोनों का पैरेलल होना। पैरेलल प्लेन का हमेशा एक ही मिलर इंडिसेस होगा। इसी बात के लिए मैंने ये प्रॉब्लम कराई हुई यहाँ पर और विजुअली इसको दिखाने की कोशिश करी हुई है कि इवन एट द इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट एट द डिफरेंट एक्सिस, but if they are plane then they will bear the same Miller indices. That's why Miller indices shows the information about the set of parallel planes cutting to a particular crystal. Not it is specifically for a particular plane, but it gives the set of planes, and all those planes will have the same Miller indices. तो ये बात आप क्लैरिटी में रखिए. मे बी द क्वेश्चन आई मे आस्क related to this one. Let us have the example number 6. Now we have this one. So anybody let me know that what is the intercept of this plane along x-axis? x-axis पर intercept कितना है? -1. -1 यानी -1 एक यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन. What is the intercept along y-axis? Let me know that what is the intercept along y-axis? Infinite. Infinite, because it is parallel to that. And what is the intercept along z-axis? Half. Half unit. For the Miller indices, what we should do? We should take the reciprocal of the same, that is -1, 1 upon -1, that is -1 again, 1 upon infinity, that is equal to 0, and 1 upon 2, 1 upon 1 upon 2 is equal to 2. Now this is in integer form, need not to take the LCM. तो -1 को क्या लिखते हैं क्रिस्टलोग्राफी में? 1 bar. 1 bar. This is 1 bar, 0 and 2. If we will put it in the parenthesis, then that will be the Miller indices. So you can take this example, and what has been mentioned here as per this axial intercept by this particular plane. We are getting -1, infinity, 1 upon 2, 1 upon -1, 1 upon infinity, 1 upon 1 by 2, and -1, 0, 2. That is the Miller indices, 1 bar, 0, 2. Now let us have this particular example. So what the intercept is along x-axis, please let me know in this first equation, first question. पहले में x-axis में क्या इंटरसेप्ट है? x-axis का इंटरसेप्ट क्या है? दिया नहीं गया है, एक्सिस नहीं लिखी गई, आप कह सकते हो, लेकिन BC लिखा हुआ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए जो रिप्रेजेंट करेगा, जिधर 3 लिखा है उसी को रिप्रेजेंट करेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, आप बताओ कि इसकी क्या वैल्यू होगी. इधर इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कितना है? 3. कहाँ 3? अच्छा ये वाला 3 आप मान रहे हो इसको ना. हाँ ठीक है, अगर 3 मान रहे हो तो 3 इंटरसेप्ट है इस प्लेन का, तो इसका मतलब हमें 3 इंटरसेप्ट लिखना है. ठीक. और वाई एक्सिस पे कितना है बेटा? 2. और जेड एक्सिस पर 2. अब इसका हमें लेना है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल लेंगे 1/3, 1/2, 1/2. ठीक है. अब इस रेसिप्रोकल का क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 6. वही एलसीएम लेना है. ऐसे डायरेक्ट आप नहीं कहेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6. वी विल टेक द एलसीएम and then after we will rationalize it in terms of the integer value, because we have to express in the lowest integer steps. तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला 2,
दूसरा 3, तीसरा 3, और ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको जो है कैपिटल ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए अगर ये मिलर इंडिसेस है तो, और बीच में कॉमा भी नहीं होना चाहिए, ये पैरेंथेसिस में 2 3 3 होना चाहिए बस। ठीक है, क्लियर? Yes. नाउ लेट अस हैव, Yes. इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस, बट आई थिंक not needed much because we did the practice for the different examples, and we are very much clear how to find it. So plane intercept axes at 2 3 a2 a2 b 3 2c and 1/3 1/2 1/, and hence the Miller indices indicates the plane Miller, that is 2 3 3, and ये अच्छा इंडिसेस ऑफ द डायरेक्शन दिया गया है मेरे सारे, जो इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन है वो जो कैपिटल ब्रैकेट, क्योंकि मैं जब पहले इसके पहले लेक्चर ले रहा था तो आपको 2-4 तरह का वो बताया था ब्रैकेट, और सभी ब्रैकेट के मायने बताया था कि वो ब्रैकेट क्यों लगाए जाते हैं और उस ब्रैकेट का क्या मतलब है, अगर उन ब्रैकेट में कुछ न्यूमेरल्स लिखे हुए हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जाम्पल है नीचे, अब आप बताइए इसमें ये तो बहुत सिंपल है भाई, एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है? नीचे वाले को एक्स एक्सिस माना गया है, 1 है। वाई पर इनफाइनाइट, जेड पर इनफाइनाइट। तो ऑब्वियस सी बात है 1 0 0 इसका मिलर इंडिसेस। इसका आप बताइए भाई, एक्स एक्सिस पर क्या है? हाफ। वाई पर इनफाइनाइट और जेड पर इनफाइनाइट, तो ऑब्वियस सी बात है 2 0 0 मिलर इंडिसेस होगी। इसमें बताइए भाई, एक्स पर कितना है? 1 वाई पर 1, जेड पर इनफाइनाइट। और इसको आप पहले से ही कर चुके हैं 1 1 1। और ये देखो भाई, इसमें ये प्लेन पीछे की तरफ कंसीडर कर लिया गया, पीछे की तरफ अगर कंसीडर कर लिया गया तो अब आप बताइए इसमें ओरिजिन कहाँ मानी जाए? सर आगे वाला पार्ट है, हैं? ओरिजिन ये वाला है सर। ओरिजिन आपका जहाँ से आगे। शेडेड लाइन शुरू हुई है, शेडेड प्लेन, वहाँ के जंक्शन पे नहीं है जहाँ से डॉटेड लाइन है, बल्कि ये उसके नीचे से शुरू है। Yes, समझिए ये sir. बात ना, क्यों? क्योंकि वह प्लेन उस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। हाँ, एक चीज और आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस पॉइंट को कभी भी आप ओरिजिन नहीं मान सकते हैं जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा हो। इसको आप नोट कर लीजिए, दैट पॉइंट कैन नेवर बी कंसीडर एज ए ओरिजिन फ्रॉम व्हिच द प्लेन इज पासिंग। Obviously you have to shift the origin in that case if the plane is passing through a so called origin, क्योंकि so called origin इसलिए कह रहा हूं कि choice of origin is not unique here। तो आपने देखो यूजुअली हर केस में आपने जहां से डॉटेड लाइन शुरू हुई है उसी पॉइंट को आप ओरिजिन मान लेते थे, लेकिन यहाँ अगर उसको आप ओरिजिन मान लेंगे तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये बात आप नहीं कंसीडर कर पाएंगे। That's why you will take the x axis in the lower direction, और वहां से जब x axis पे चलेंगे तो x axis पे बाहर की तरफ चलते तो पॉजिटिव था, लेकिन अब अंदर की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक यूनिट पे जाने के बाद वो प्लेन मिल रहा है, इसलिए 1 बार इसका इंटरसेप्ट हुआ। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now we have a big picture here, and it has so many intercepts, and simultaneously it is depicting so many figures also। तो कई प्लेन एक साथ दिखे गए हैं, जैसे हम कहें पहला प्लेन यह है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा प्लेन यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, पांचवा यह है, छठवां यह है, सातवां यह है मान लीजिए। तो इस तरीके से जो इंटरसेप्ट्स दिखा रहे हैं इस प्लेन के द्वारा, वो इंटरसेप्ट्स का आप मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर
picture has been given here, and you can see how we can determine the Miller indices for the different planes there. और इन सभी केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आपको ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद, जैसे आप ओरिजिन इसमें यहाँ मानेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात नेगेटिव होगा, यहाँ से इधर जाएंगे ये भी नेगेटिव होगा, नीचे जाएंगे ये भी नेगेटिव होगा, या ये प्लेन कहाँ कट कर रहा है, इस तरीके से। तो सो मेनी अदर केसेस विल बी देयर इन व्हिच द shifting of origin will be required, and accordingly you have to write the Miller indices for the same. So please do the practice by taking the different tutorials that is also available in the online, कि हम कैसे Miller indices निकाल पाएंगे, कैसे हम अगर Miller indices दी गई हैं तो प्लेन कैसे निकाल पाएंगे, वो प्लेन कहाँ से पास होगा, तो that we can do here. अकेले दो क्रिस्टल भी दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक तो सोडियम क्लोराइड है और दूसरा डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो लेट अस हैव इन ब्रीफ अबाउट दिस वन। और ये दोनों स्ट्रक्चर अगर हमारी बुक में देखेंगे तो क्रिस्टलोग्राफी वाले में नहीं है बल्कि एक्सरेज में है, तो वहाँ से आपको इसे देखना होगा। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर ऑब्वियसली वी हैव N+ और Cl-। तो cesium chloride have almost same type of structure, hexagonal packed structure, diamond structure, zinc blade, ये सारे ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड also crystallizes in the cubic lattice but with a different unit cell. इसमें एक से ज़्यादा यूनिट सेल होती, इसलिए इसे ब्रैबे लैटिस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रैबे लैटिस के लिए ज़रूरी है कि एक ही तरह का क्रिस्टल हो, एक ही तरह का लैटिस हो, सिंगल लैटिस हो। इसमें एक लैटिस क्यूब के रूप में सोडियम की होगी और दूसरे के रूप में क्लोरीन की होगी। तो व्हेन दे विल बी मिक्स्ड बिट टुगेदर, अब कैसे इनकी मिक्सिंग होगी ये मैं आपको एग्जाम्पल दिया भी था। इसको समझने का, 3 डायमेंशनली रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि आप एक कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हुए हों उसको क्यूब के रूप में कंसीडर करिए, और एक दूसरा क्यूब लीजिए जो इस क्यूब में ऊपर से, इसकी छत से उस क्यूब को अंदर डालिए और हाथ पर आकर के रोक दीजिए। यानी ऐसे इसको रिपीट करते हुए आगे बढ़िए, और नीचे वाला स्ट्रक्चर, और फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं। अगर हम सभी क्यूब को, यानी सोडियम वाले क्यूब को और क्लोरीन वाले क्यूब को 3 डायमेंशनल एक्सटेंड कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन प्लेस्ड at alternate point of a simple cubic lattice. Each ion has 6 of other kind of ions as its nearest neighbor. अगर हम ये कहें कि सोडियम को हम यहाँ थोड़ा ब्लूइश कलर से दिखा रहे हैं, और हमारा जो ये क्लोरीन का आयन है इसको हम ऑरेंज या कुछ लाल कलर से दिखा रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। अगर आप सोडियम को लेंगे तो सोडियम के, देखो अगर हम एक्स एक्सिस माने, ऊपर वाले सोडियम क्लोराइड जहाँ Na+ लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर देखो जहाँ क्लोरीन माइनस लिखा हुआ है उसे हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस पर एटम आपको मिला क्या, क्लोरीन मिला, और जब वाई एक्सिस पे इसे ठीक सामने देख रहे हैं तो दूसरा क्लोरीन है, इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं तो तीसरा क्लोरीन है। ऐसे जब हम इसके जो जेड एक्सिस नीचे की तरफ हम देखें, इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो एक क्लोरीन का वहाँ मिल जाएगा। ऐसे जेड को जब हम नेगेटिव डायरेक्शन, वाई को जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक और क्लोरीन आयन मिल जाएगा, और ऐसे ही एक्स को जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो हमें एक और क्लोरीन का, यानी कोई भी आयन ले ले, चाहे सोडियम का ले ले या हम क्लोरीन का ले ले, तो सोडियम इज सराउंडेड बाय द 6th नंबर ऑफ द क्लोरीन आयन, एंड सिमिलरली दिस क्लोरीन विल बी सराउंडेड बाय द 6th नंबर ऑफ द सोडियम
ions also, what has been written here. तो लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि इसको सिंपल क्यूब क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि एक अगर कोई भी एक क्यूब हम इसमें से कंसीडर करें, इस बात को भूल करके कि क्लोरीन का अलग लैटिस है और सोडियम का, तो एक अगर क्यूब इसमें से छाटे तो इस क्यूब में मिक्स नंबर ऑफ सोडियम और क्लोरीन दिखेंगे। तो एक सिंपल क्यूब में सोडियम और क्लोरीन दोनों के आयन में यहाँ पे मिल जाएंगे। बट to understand it, how they has been packed and how they has been constituting the entire crystal by repeating the lattices corresponding to the sodium and chlorine. Only the way is that if you will insert one room from the upper side and you will stop its penetration at the middle of the region of the first cube, and similar unit cell will be repeated for the sodium as well as the chlorine in order to have the three-dimensional structure of sodium chloride, then you will have the sodium chloride structure. So what we have to realize and we have to see here. So obviously we will see the sodium chloride, then in the bulk form it appears just as a transparent, what has been shown here. And in the first step you might have seen there the sodium, chlorine, and then after they are combining in two-dimensionally, and then after they has been packed in 3 dimension, and when they has been repeated in the multi numbers of their crystal structure, then obviously we have this very beautiful picture here. And if we will have the commercial and bulk form of that, then the transparent form which usually be used to see here, that has been appeared here. If we take the sodium chloride unit cell and remove all the red chlorine ion, we are left with only the blue sodium. If we compare this with the FCC unit cell, it is clear that they are identical. Thus the sodium is in a FCC sublattice. ये देखो ऐसे है। अगर मान लीजिए इसमें से हम एक पार्ट को हटा देते हैं, जैसे हम इसमें से ब्लू हटा दें या इसमें से हम रेड हटा दें, तो इस तरीके से एक तरह का मिलेगा। और ये हमेशा जो कोई भी लेगा, अगर हम इसे इंडिपेंडेंटली इन क्रिस्टल इन लैटिस को कंसीडर करें, तो दे विल बी इन FCC sublattice form. तो दिस इज द विजुअलाइजेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट। आप देख रहे होंगे कि हाफ एटम अंदर है, हाफ इधर एटम बाहर है, इस तरीके की सिचुएशन। So more discussion has been given here. This structure can be considered as a face-centered cubic Bravais lattice with a basis consisting of the sodium ion at O and a chlorine ion at the center of the conventional cell, and its representation in terms of the vectorial form and lattice parameter as well as the x, y and z axes that has been given here, and the examples are LIF, NABR, KCl, LII and etc. such are the example of this particular category. The lattice constants are in the order of 4 to 7 angstrom in case of sodium chloride structure. Let us have the diamond structure. The coordination number of the diamond structure is 4. The diamond lattice is not a Bravais lattice. SiGe and carbon crystallizes in the diamond structure. इसमें क्या होता है कि 3/4 का कॉम्बिनेशन है, यानी अगर हम सिलिकॉन के 2 लैटिस ले लें और उनको हम 3/4 ऊपर नीचे करें, यानी जैसे इसमें हम हाफ इंसर्ट कर रहे थे, इसमें अगर हम 3/4 का स्ट्रक्चर करके इनका रेपिटेशन करें, तो जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज नोन एज द डायमंड स्ट्रक्चर, एंड यू कैन सी हियर द सिचुएशन फॉर द डायमंड स्ट्रक्चर इन दिस वे. So this is all about what I was interested to discuss today. So I finished my lecture today well in time, and again I wish to give the information that your test will be conducted on the Monday.
tomorrow I will take the lecture for the X-ray and crystallography X-ray, in the X-ray as well as the Brax spectrometer especially. And then after one lecture will be left for the Compton effect, but I don't remember that either Compton effect is in your syllabus or not. I will see, and accordingly I will suggest you what you have to read and how do you have to prepare. But with the prevailing situation, your test examination will be conducted on Monday for the entire first unit. Please go through and prepare for the same. So anybody सर have any? यूनिट 1 की सारी पीपीटी सेंड कर दी सर. अच्छा, वो तो शेयर नहीं किया उन्होंने क्या? सर लेकिन इसमें उन्होंने मिलर इंडिसेस और ये सब उसमें दिया नहीं था. अच्छा, मिलर